So hello friends, today we are going to discuss a new lesson of Maharashtra SSC Board Effects of Electric Current. इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, पहले 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है हर साल, उनके ऊपर सबसे पहले पूछते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते ही हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमको इंपॉर्टेंट फार्मूले पूरे आने चाहिए। एंड सेकंड न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे। देन थर्ड कंसेप्ट जो पूछा जाता है, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेफिनेशन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स इन बोर्ड एग्जाम्स जो पूछे हुए हैं अब तक, वो क्वेश्चंस हम फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे। देन जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट फार्मूले, उसके अंदर अगर डिस्कस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट फार्मूले के अंदर जो कंसेप्ट जो पूछा जाता है, दैट इज़ चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, आई इंटू टाइम मीन्स टी, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलोम. You have to remember that charge Q is equals to IT. Q denotes charge, I denotes current, and T denotes the time. Here SI unit of charge is coulomb. This we have to remember. Now next second, heat is equals to power. This means we consider this concept as different, that heat is different and power is different, but in this lesson we have to consider as heat is equals to power. That is second electrical power formula is P is equals to V into I, where P is potential difference, I is current. We have to remember this. And then the other formula for electric power, इसके अलावा कि power is equals to V square upon R. ये दो फार्मूले हैं, that electrical power is equals to V into I, and second electrical power is equals to V square upon R, where V is potential difference and R is resistance. SI unit of power is watt. Means for solving numericals we have to learn that, and for MCQ purpose also. Third, ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर. हमने 9th स्टैंडर्ड में इसको ऑलरेडी सीखा है, दैट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें. V इज पोटेंशियल डिफरेंट, I इज करंट, एंड R इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस यूनिट इज ओहम, वी कॉल्ड एज राइट एज ओहम, लाइक दिस. ओके, देन नाउ मूविंग टू न्यूमेरिकल्स इन दिस लेसन्स, देयर आर 4 न्यूमेरिकल्स आफ्टर दिस कंसेप्ट. तो हम उन सबको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन alloy nichrome is shaped into a coil and given for producing heat. It has a resistance. ओके, 6 मीटर वायर है, लेंथ दी हुई है उसकी, एंड हमको उसके बाद इट्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे जो गिवन डेटा में हमको मालूम है, गिवन के अंदर रेजिस्टेंस दिया है 24 ओहम, राइट. Can we get more heat if the wire is cut into half of its original length? If the that coil which is given is cut half of its original length and it's shaped into a coil, then क्या हमको उससे more heat supply होगी या कम heat supply होगी? We have to solve it. Means हमको indirectly heat निकालना है, that is power is question mark. मैंने बताया पावर और हीट का दोनों का कंसेप्ट एक ही है. नाउ फॉर गेटिंग एनर्जी, द 2 ends ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड एज V, गिवन एज 220. दिस इज गिवन डेटा. सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस. हाँ, अब अभी हमने सॉल्व किया. फॉर्मूला हमको एक पता है कि पावर इज इक्वल्स टू, वी नो दैट potential difference and we know the resistance, therefore this formula is applicable. But we have to find 2 concepts. First concept, first question numerical is that we have to find with original length, and then we have to find with half of its length. Whole wire or whole length, whole wire, we have to consider that which our formula becomes power is equals to V square upon R, where V square is given. V square is given means potential difference is 220 whole square divided by resistance is 24. Further on solving this, we got as answer 2016.6. Okay, this is mathematical calculation, you have to do that, and therefore power is equals to 2016.6 watt is the final answer. We have to remember the units to put it. For half wire,
नाउ अगर हाफ वायर है तो फ़र्क क्या पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, सी रेसिस्टेंस के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। हाउ, अगर पावर हाफ, अगर लेंथ वायर हमने हाफ कर दी, इफ़ लेंथ इज़ हाफ्ड, लेंथ अगर हाफ हो जाती है तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है ये भी हाफ हो जाता है। ये कैसे है कि रेसिस्टेंस हाफ हो जाता है, तो रेसिस्टेंस के लिए हमको फॉर्मूला है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, फॉर दैट रेसिस्टेंस, ये कांस्टेंट के लिए है जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में सीखेंगे। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ रो एंड ए आर मीन्स ए इज एरिया, एल इज लेंथ एंड रो इज रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। तो अगर रेसिस्टेंट, अगर लेंथ और रेसिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली, मतलब अगर ये हाफ हो गया तो लेंथ भी हाफ हो जाएगा। दैट्स वाई अगर लेंथ हाफ है तो रेसिस्टेंस हाफ करना पड़ेगा। देयरफॉर फॉर सॉल्विंग अगेन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एंड नाउ वी स्क्वायर इज 220, नो चेंज। हाँ, बट इस बार रेसिस्टेंस क्या होगा, 24 था उसका 12 हो जाएगा। ओके, एंड देन ऑन सॉल्विंग दिस वी गॉट द वैल्यू एज, इधर सॉल्व करते 4033.3 watt. Okay, so therefore we got power is equals to 4033.3 watt to a 9 ohm resistance। तो रेसिस्टेंस जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा में लिखेंगे। रेसिस्टेंस अ सेल कनेक्टेड है, रेसिस्टेंस कितना है 9 ओहम का, राइट, बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल, हीट मीन्स दे आर गिवन एज हीट पावर 400 joule is produced per second due to a current flowing through it. Obtain the potential difference. We have to find the potential difference, that is V is question mark. हाँ, so solution we know what is the formula for solving this. We know that P is equals to V square upon R, but हियर द प्रॉब्लम क्या है कि P की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, राइट। सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर। वी हैव टू टेक दिस टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू V स्क्वायर। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू P इज 400 एंड R इज 9। सो टेकिंग ऑन स्क्वायर रूट, अंडर रूट 400 मल्टीप्लाई बाय 9, 400 का स्क्वायर इज 20 एंड 9 का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर रूट, सॉरी। सो V इज इक्वल टू 60। अब ये किस में होगा, वोल्ट में होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट में होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल आयरन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 watt, मीन्स अगेन वी हैड गिवन डेटा, पावर इज इक्वल टू 1100 watt when set to higher temperature. If set to lower temperature it comes, means we had given PA, we consider at, क्योंकि दो पावर की वैल्यूज़ दी है, एक 1100 दी है जब हाई पे है और PB हम कंसिडर करेंगे जब हमको लो पे बोला हुआ है, राइट। सेट टू लो टेम्परेचर इट यूजेस 330 watt पावर। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, I we have to find and the respective resistances, means we have to find electric current I1, इलेक्ट्रिक करंट पावर के कारण दोनों अलग अलग होंगे, तो I1 और I2 फाइंड करना है, और सेम फिर उसके बाद हमको रेजिस्टेंस R1 एंड R2 फाइंड करना है। ओके, सो फॉर सोल्यूशन एम्पियर 5 एम्पियर। नाउ वी हैव टू फाइंड सेकेंड वन, सेम दिस कंसेप्ट ओनली वी हैड सॉल्व्ड फॉर okay, now for PB is equals to V into IB, so PB हमें दिया है 330 is equals to V 220 and IB we don't know। for after solving करंट जो मिलेगा ये 1.5 एम्पियर मिलेगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड टू वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो R1 तो हमको क्या पता है, ओहम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR। ओके, तो रेसिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, I की वैल्यू हमको 1.5 मिली है, V की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 220 है, R वी डोंट नो। फॉर A के लिए सॉरी फॉर B के लिए ऐसे मिलेगा, और अगर हम A के लिए सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू IR एंड V कितना है 220, अगेन IA फाइंड करें, IA हमको 5 मिला हुआ है एंड R वी डोंट नो।
फॉर सॉल्विंग दीज वैल्यूज़ हमको अगर हम आई बी सॉल्व करेंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ बी हमको जो मिलने वाला है वो होगा 146 कूलोम ओहम, एंड रेसिस्टेंस ऑफ ए कितना मिलेगा तो 44 ओहम. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन अगेन इजी है, बस बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट. द होम सर्किट सप्लाइज रन्स एट potential difference that is V is given as 220 volt. when switched on a current I दिया हुआ है 0.45 एम्पियर flows through the bulb. what must be the power of the bulb if it is kept for 10 hours. तो पावर हमको फाइंड करना है, एंड देन हमको क्या बोला है कि इफ़ कंटिन्यू अगर वो 10 आवर्स के लिए चलता रहा तो उसकी हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड. तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड कितनी होगी ये भी बताना है हमें. इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड ये हमें नहीं पता है, और दो चीज़ फाइंड करनी है. तो पहला तो इजीली फाइंड हो जाएगा, हमको फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई. दैट इज़ V कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, इंटू आई 0.45 दिया है. दोनों को सॉल्व किया तो इट बिकम्स 99 वैट. तो पावर हो गया 99 वैट. देन सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड करने के लिए अगर 1 सेकेंड में 99 मिल रहा है इतने टाइम में, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम्ड होगी 10 आवर्स के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. दैट इज़ पावर 99 इंटू कितने आवर्स हैं 10 आवर्स हैं, तो वी गॉट एज 990 वैट. ओके, वैट इतना 990 वैट पर आवर हमें मिलेगा. ओके.